हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वांस टेरो रीडिंग। और आज हम बात करेंगे कंगना रनौत के बारे में और जानेंगे कैसा रहेगा उनका फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और प्रेस करिए रेड कलर का एक आइकन है, उसे प्रेस करिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा बेल बेल का, और उसमें आपको ऑल पे क्लिक करना है। जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस आपके फ़ोन में आपको मिल जाएंगे और इसके कोई भी चार्जेस नहीं होते। तो प्लीज़ आप जुड़िए मेरी फैमिली से। और मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली और बड़ी हो और हम लोग मिल कर के जो भी सोशल प्रॉब्लम है, जो भी इनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं अपने अपने तरीके से। और टैरो रीडिंग के थ्रू हम जान सकें कि क्या हुआ है, एक नॉलेज ले सकें हम उस सिचुएशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब कंगना रनौत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है उनके फ्यूचर में, क्या होने वाला है। ठीक है, so let's pull out cards for कंगना रनौत. Lost out Nostradamus, please tell me the future of the Queen, कंगना रनौत. Please tell me the future of the Queen, कंगना रनौत. Okay, दो कार्ड्स आए हैं मुझे. All right, let's pull out more cards. Lost out Nostradamus, please tell me what is the future of कंगना रनौत in regards to justice for सुशांत सिंह राजपूत. क्या उनका फ्यूचर रहेगा, क्या उनकी लाइफ को कुछ खतरा है, क्या होगा आने वाले समय में, प्लीज़ बताइए. Lost of Nostradamus, please tell me what's the future of कंगना रनौत. Okay, please tell me the future of कंगना रनौत. Okay, let's give me cards for कंगना रनौत. Is there any threat to her life? Is there any threat to her life? Is there any threat to her life? Please tell me, Lost of Nostradamus, is there any threat to कंगना रनौत's life in the near future? Forward movement. Please tell me what will happen in the near future. Is there any threat to her life? मैसेज, क्या मैसेज आएगा? प्लीज़ टेल मी व्हाट द मैसेज विल बी. ओके, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट द मैसेज विल बी अबाउट दिस लेडी. प्लीज़ टेल मी, लॉस्ट ऑफ नॉस्ट्रडामस, व्हाट विल बी द मैसेज. व्हाट विल बी द मैसेज अबाउट दिस लेडी. प्लीज़ टेल मी, लॉस्ट ऑफ नॉस्ट्रडामस. प्लीज़ टेल मी, लॉस्ट ऑफ नॉस्ट्रडामस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. प्लीज़ टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. प्लीज़ टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. टू कार्ड्स. Okay, Lost of Nostradamus, please give me some clarity. Please tell me what's the future of कंगना रनौत. Please tell me the future of कंगना रनौत. Lost of Nostradamus, please tell me the future of कंगना रनौत. Okay, now I'll pull out 3 more cards and that's it. Please tell me the future of कंगना रनौत. Please tell me the future of कंगना रनौत. 1. Please tell me the future of कंगना रनौत. 2 and 3. Okay. Okay, I have so many cards right now with me. So many cards I got. So I'll try to understand all the cards and then I'll let you know. Okay. Sudden message is going to come. कोई न्यूज़ आने वाले समय में, कोई न्यूज़ आएगा, सडन मैसेज आएगा, कुछ सडनली होगा और वो मैसेज आएगा. अब ये मैसेज क्या आएगा और क्या होगा, ये हमें जानना ज़रूरी है. चलिए कोशिश करते हैं जानने की कि क्या मैसेज आने वाला है, आने वाले समय में क्या मैसेज आने वाला है. लेट्स सी. Let's find out what the message will be. Let's find out what the message will be.
Guys, I can see that something sudden is going to happen, or a message is going to come. Now what this message will be, we have to find it out what the message will be. Okay, so let's try and find out what the message will be. Let's try and find out what the message will be. Okay, Mr. of Nostradamus, please tell me, what is this message coming in the future? What is the message that will be coming in? Something is going to happen all of a sudden. What is this energy? What message is going to come? This message is regarding whom? Please tell me, Nostra of Nostradamus. Nostradamus, please tell me, what is the message? Please tell me the message, Nostra of Nostradamus. Please give me the message, please. Okay, so this person is not fighting with the puppets. Okay. Running away. So what's in the future? What's in the future? Victory. Okay, great. Temperance card means Hierophant. One more card, please. One more card, please. Suggest one more card, and so that I could just tell what will happen in the near future. What will happen? Please tell me. Justice. Okay. One more card. Passion. All right. That answers the story. Just tell me what is this. Okay. So these were the cards जो हमें इनिशियली आए थे, तो इनको अभी हम यहाँ रख देते हैं, और जो स्टोरी मुझे समझ में आ रही है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ. ओके. Tarot, please, and let me understand the story. Okay, so we have this burning tower, then we have the message coming in. Okay, so let me explain you how the things will happen in the near future. This is the burning tower. The burning tower means something sudden will happen. कोई अचानक से कोई चीज़ होगी, और वो जो भी चीज़ होगी, हो सकता है कि कंगना रनौत जो अभी जस्टिस के लिए फाइट कर रही हैं इसमें कामयाबी मिले, और ये मैसेज आएगा. एक ये इसका मतलब है. दूसरा मैसेज ये है कि अचानक से कुछ ऐसा होगा कि कंगना रनौत और ज़्यादा भड़केंगी अभी आने वाले समय में. और वो अभी तो सिर्फ ये जो आप छोटे छोटे शिप देख रहे हैं, ये जो आप शेड देख रहे हैं, ये तो कंगना रनौत आप की एनर्जी है. और ये जो छोटे छोटे से आप ये ग्रुप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो ये आप कह सकते हैं जो भी करण जौहर और ये जो नेपो किड्स हैं, ये सब समझ लीजिए आप इसको. तो ये जो शेर है, इसके हाथ में तलवार है, और इस वक्त ये बहुत गुस्से में है, क्योंकि अचानक से इसको कोई मैसेज ऐसा मिल जाएगा. फ्यूचर में अभी कुछ ऐसा होगा कि कुछ अचानक से कोई इवेंट ऐसा होगा कंगना रनौत की लाइफ में, और ऐसा उन्हें जानकारी मिलेगी, कोई मैसेज उनको मिलेगा, जिसकी वजह से अभी वो जो नेपो किड्स के पीछे और करण जौहर इन सब की को अच्छे से हैंडल कर रही थी, अब उनका फोकस जो है वो जाएगा किसी और की तरफ. किसकी तरफ जाएगा ये फोकस जाएगा सलमान खान और ये जो सूरज पंचोली है, इन सब की तरफ भी अभी कंगना रनौत अपना जो उनकी बयान है वो देंगी. अभी वो गुस्से में आएंगी, क्योंकि अचानक से हो सकता है कि ये लोग या तो उन्हें धमकी दें, या कुछ उनके बारे में ऐसा मैसेज उन्हें करें, या उन्हें कॉल करें, या उनको डराने की कोशिश करें. तो अभी तो कंगना रनौत सिर्फ नेपो किड्स और इन सबको ही हाईलाइट कर रही थी, और जो जितने नेपो किड्स हैं और ये करण जौहर, महेश भट्ट, इनको ही कर रही थी. लेकिन जैसे ही उनको कोई मैसेज अचानक से आएगा आने वाले समय में, कुछ ड्रास्टिक ऐसा होगा, उनको कोई मैसेज या धमकी दी जाएगी कुछ लोगों की तरफ से, तो फिर उसके बाद उनका फोकस हटेगा, और उनका फोकस सलमान खान और सूरज पंचोली और इन सब की तरफ भी जाएगा. ये इसका मतलब ये मुझे इंडिकेशन हो रहा है.
और साथ ही साथ ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि इन सब चीज़ों में विक्ट्री कंगना रनौत की ही होगी। ये जो तलवार आई है विक्ट्री का कार्ड है, ये कंगना रनौत की और हमारी विक्ट्री होगी, क्योंकि हम सब जो मिल करके जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत में जो फाइट कर रहे हैं ये उसकी विक्ट्री होगी। तो कुल मिला के आने वाले समय में कंगना रनौत को सडन मैसेज आएगा या उनको अचानक से कोई धमकी मिलेगी अंडरवर्ल्ड से या कहीं से भी उनको धमकी मिलेगी, और जब उनको वो धमकी मिलेगी उसके बाद उनका जो गुस्सा है वो और बढ़ जाएगा और वो एक शेर की तरह, अभी तो ये जो भेड़ आपको दिख रही है, नेपो किड्स दिख रहे हैं ये सारे, और ये महेश भट्ट, ये सब छोटे छोटे जो मछलियाँ जैसे समुद्र की छोटी मछलियाँ होती हैं, अभी तक तो ये उनसे लड़ रही थी छोटे छोटे क्रीचर से, लेकिन अब इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अचानक जो इनको धमकी मिलेगी या कोई मैसेज इन्हें अचानक से आएगा अंडरवर्ल्ड से या कुछ, और वो फिर इनके ऊपर ये जो सलमान खान और ये सूरज पंचोली और ये आदित्य पंचोली, ये सब जो लोग हैं इनके ऊपर ये भड़केंगी और इन्हें भगाएंगी। जैसे इनका आपने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, उसमें भी इन्होंने झांसी की रानी का रोल प्ले किया था और ऐसे ही तलवार उठा के दुश्मनों को भगाया था, वही इसमें है। ये देखिए भाग रहे हैं, ये घोड़े पे जो बैठे हैं ये सलमान खान और ये जो बाकी जो इनके गैंग के जो बंदे हैं सूरज पंचोली और जो ये सब हैं यही हैं, इनके पीछे ये भाग रही हैं गुस्से में और तलवार लेकर के। आप इस पिक्चर के थ्रू एनर्जी को समझ सकते हैं। और जो ये जा रही हैं इनके पीछे, विक्ट्री जो है ये इनकी विक्ट्री होगी, कंगना रनौत विल विन दिस। तो ये जो भी फाइट हो रही है इसमें कंगना रनौत ही जीतेंगी। ठीक है, इतना अगर हमें क्लैरिटी हो गई है। अब मैं आगे आपको कार्ड्स थोड़ा बताती हूँ। इसके बाद मुझे ये कार्ड्स आए हैं जो ये बताते हैं, ये कार्ड है पैशन का। पैशन मतलब किसी भी चीज़ के लिए जब आप बहुत सीरियस होते हो, आप ये सोचिए जिस तरीके से हम जस्टिस फॉर सुशांत के लिए हम फाइट कर रहे हैं, ये वो पैशन है। ये पैशन सिर्फ एक कंगना रनौत का नहीं, ये पूरे भारत का पैशन है। भारत के अलावा और भी देश हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहते हैं, वहाँ के लोग भी जस्टिस चाहते हैं। मुझे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्रीज से जो मुझे मैसेज करते हैं, नेपाल से और अलग देश से, और कहते हैं कि हमें भी बहुत दुख है सुशांत का और हम भी चाहते हैं जस्टिस हो। तो ये उन सब लोगों का जो पैशन है, जो प्यार है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, ये वो है। और आते हैं हम इस कार्ड पे, ये है बैलेंसिंग का कार्ड, ये है इंसाफ का कार्ड। तो ये हमें इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और ये कंगना रनौत के लिए आप ये सोच सकते हैं, कंगना रनौत है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। ये डेफिनेटली इस लड़ाई में जो जीत है वो इनकी ही है। तो ये भी अच्छे कार्ड्स हमें आए हैं। इसके अलावा जो कुछ कार्ड्स और मुझे आए हैं मैं इनको भी थोड़ा सा देखना चाहूँगी। ये देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो आप इसमें एक लेडी देख रहे हैं ये कंगना रनौत ही है, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत स्ट्रांग है, जिनके सामने हर कोई टिक नहीं सकता है। और साथ ही साथ ये आप चैरियट का एक कार्ड देख रहे हैं, इसका मतलब है मूविंग अहेड। तो ये आगे बढ़ चुकी हैं, चैरियट का कार्ड आया है, इसका मतलब है ये कंगना रनौत जो है ये आगे बढ़ चुकी हैं और इंसाफ के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कार्ड मुझे शुरू में आया था, जिसका मतलब ये है कि कंगना रनौत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस समय, बहुत बड़ा रिस्क वो ले चुकी हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री से पंगा लेने का, क्योंकि वो ये जानती हैं कि अगर ये कामयाबी नहीं मिली और ये बैकफायर हुआ तो ये लोग इनका करियर पे बहुत नुकसान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन ये है, एक बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, इन्होंने ये रिस्क लिया है, तो हमें इनको सपोर्ट करना ही करना है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, ये चैरियट का मतलब है मूविंग अहेड, ये आगे बढ़ चुकी हैं रथ पे और जस्टिस दिलाने के लिए। और ये एक बहुत ही फोकस्ड लड़की हैं, बहुत मेहनती लड़की हैं, बहुत मेहनती हैं ये इनकी ही क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। साथ ही हम बात करेंगे ये लवर्स कार्ड की। मुझे इसमें ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले समय में कोई इनकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सन ऐसा होगा जो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इनसे अलग हो गया होगा, या इन दोनों के बीच में कोई ये इनकी पर्सनल लाइफ का कार्ड शायद पुल हो गया है। तो इसमें ये पता चलता है कि इनकी लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका कोई फ्रेंड जिनसे लव था या प्यार था, तो इनके बीच में जो भी मनमुटाव हुआ है वो भी अभी इसमें दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में था पास्ट में। क्योंकि मैंने कंगना रनौत का फ्यूचर पूछा है इसलिए मुझे ये कार्ड आया होगा। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इनका ब्रेकअप हुआ था और अब लवर्स कार्ड आया है, मतलब ये इनकी लाइफ में न्यू लव या जो इनका पुराना लव था उसकी एंट्री होगी। तो ये इस कार्ड को सिग्निफिकेंट है। तो ये कंगना रनौत की लाइफ में लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी इनके साथ जो भी था पर्सन जिसके साथ इनका ब्रेकअप हुआ होगा या कुछ भी, तो वो चीज़ अभी ठीक हो जाएगी। और लव लाइफ का अच्छा कार्ड आया है। और उसके अलावा अगर मैं बताऊं, और एक बात और इसमें अगर आप ये देखें कि लव लाइफ के साथ साथ नॉट ओनली लव लाइफ,
अगर आप इसमें ये देखें, यहाँ पे तराजू दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे तराजू, और ये तराजू जो होता है ये जस्टिस का भी इंडिकेशन होता है। तो हो सकता है जो भी ये पर्सन है, जो भी ये पर्सन है इनकी लाइफ में, वो इनके इस स्टेप से बहुत खुश है कि जस्टिस के लिए लड़ रही हैं, और ये पर्सन इनको पसंद करता है। तो ये इनकी क्वालिटी है कि जस्टिस के लिए लड़ती हैं, आवाज़ उठाती हैं। तो जो भी ये एक्स पर्सन इनकी लाइफ में होगा, जो इनसे दूर चला गया होगा, तो ये पर्सन दोबारा वापस आ सकता है इनकी लाइफ में। और कंगना रनौत ओपनली इनका वेलकम कर रही है, बिकॉज शी ऑल्सो लाइक्स दिस पर्सन। तो आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज़, बट येस, डेफिनेटली जस्टिस की लड़ाई में ये दोनों साथ में नज़र आएंगे। अभी तो ऐसा कोई पर्सन आया नहीं है सामने कि जो ये कंगना रनौत के साथ खड़ा हो कि मैं भी कंगना को सपोर्ट करता हूँ, या उनका कोई ऐसा पर्सन जिनको वो पसंद करती हूँ। लेकिन ये कार्ड ऐसा शो कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस जस्टिस की लड़ाई के थ्रू टाइम पे ही कोई पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कि अभी कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आए, और लव लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और इसी जस्टिस की लड़ाई में, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम जस्टिस की लड़ाई कर रहे हैं, इसी दौरान कोई पर्सन उन्हें मिल सकता है जो उनकी, या तो न्यू पर्सन भी हो सकता है जिनको वो पसंद करें। और ये लवर्स कार्ड है, तो डेफिनेटली इस दौरान ही इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, या फिर कोई पुराना पर्सन जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उसका भी ही विल ऑल्सो रिटर्न बैक। सो ये इनके लिए कार्ड आया है, एंड शी विल मूव अहेड, आगे बढ़ेंगी। अच्छा, और मैं एक और आपको कार्ड बताती हूँ। जो ये कार्ड मुझे आया है, ये कार्ड मुझे बहुत हद तक एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ इशारा करता है, जो कि महेश भट्ट हो सकता है, क्योंकि ये महेश भट्ट वाली ही वाइब्स है, इससे वही एनर्जी है। तो ये बहुत ही कनिंग पर्सन है जो इस चेयर पे बैठा हुआ है, जो खुद को बहुत सुपर्ब समझता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इस कार्ड से लिंक है। ये इसने भी कंगना रनौत की लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट किया है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपको कहा कि सडन कुछ सडन होगा, कोई मैसेज आएगा, तो ये सडन मैसेज भेजने वाला यही पर्सन हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये अंडरवर्ल्ड से भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया शुरू में ही कि उनको अंडरवर्ल्ड से धमकी ज़रूर मिलेगी। तो ये अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं, जो कनेक्टेड हैं, वही लोग अचानक से कंगना रनौत को धमकियां देना शुरू कर देंगे, मैसेजेस करना शुरू कर देंगे। ये मैसेज का कार्ड है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एंग्री हो जाएंगी। और जो ऑलरेडी नेपो किड्स के पीछे, वो नेपो किड्स देखो, ये छोटे छोटे जो भेड़ सी दिख रही हैं, ये सब नेपो किड्स और करण जौहर ये सब है। तो अभी तो इनके पीछे ये थी, लेकिन उसके बाद इनका सीधा सीधा जो इनका जो गुस्सा जाएगा, वो इनका गुस्सा जाएगा इस पर्सन के ऊपर। एक मिनट, ओके, आई शो यू। वो इनका जो गुस्सा जाएगा वो इन लोगों के ऊपर जाएगा, जो कि ये पंचोली और ये खान, ये इनके ऊपर इशारा करता है। तो अब ये इनकी तरफ जाएंगे कि इनके अंडरवर्ल्ड से लिंक है। और विक्ट्री किसकी होगी? विक्ट्री कंगना रनौत की होगी। ये कंगना रनौत को नहीं हरा पाएंगे, विक्ट्री कंगना रनौत की होगी। उसके अलावा जस्टिस, अभी ये पैशन का कार्ड मुझे आया था, इस पैशन का लव का कार्ड, जो मैंने अभी इनके लव का कार्ड बताया, कहीं ना कहीं ये इससे भी लिंक करता है। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है कि कंगना रनौत की लव लाइफ में ज़रूर कुछ किसी न किसी की एंट्री होने वाली है। लवर्स कार्ड भी मुझे आया है, पैशन का कार्ड भी आया है, और आप ये देखिए जस्टिस बीच में ये बैलेंसिंग का कार्ड आया है। तो कोई ना कोई पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, या कोई पुराना पर्सन आने वाला है वापस, क्योंकि ये यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी आया है। तो लव लाइफ अच्छी हो जाएगी इनकी लाइफ में, इनको कोई ना कोई पार्टनर लाइफ में अच्छा मिलने वाला है कंगना रनौत को। और ये बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं, ये जो भी इनको धमकी देगा, ये उसके खिलाफ और ज़्यादा स्ट्रांग होकर सामने आएंगी। ये हार मानने वालों में से नहीं है, शी इज़ वेरी स्ट्रांग। और इनको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये जो कार्ड मुझे आया है, ये हीरोफेंट का कार्ड है, इंटेलेक्चुअल पर्सन का कार्ड है, और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी का कार्ड है। तो ये कंगना रनौत को जो भी थ्रेट मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक रहेंगी, और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां ज़रूर मिलेंगी, और ये इस कार्ड से कंफर्म होता है कि उन्हें डराया जाएगा, उनको धमकियां दी जाएंगी, लेकिन उन धमकियों से वो डरने वाली नहीं है। ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है इस चेयर पे, ये धमकियां दे सकता है और देगा धमकियां, लेकिन उन धमकियों से ये और गुस्सा होंगी, और जो और जितने भी लोग हैं सबको एक्सपोज करती चली जाएंगी। जब एक्सपोज करने पे आएंगी तो ये अब रुकने वाली नहीं है। साथ ही साथ इनकी लव लाइफ इस टाइम पे, जस्टिस जो हम मांग रहे हैं, इस टाइम पे ही इनको कोई ना कोई पर्सन ज़रूर इनकी लाइफ में आएगा, रिलेटेड टू दिस जस्टिस बैलेंसिंग कार्ड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड टेक केयर, बाय नाउ।